Welcome in learning maths in easy way. Next topic is sales tax and value added tax. Both taxes are paid to the government. जो हमारा शॉपकीपर होता है वो किसी भी प्रोडक्ट को जब सेल करता है तो उसको कुछ सेल्स टैक्स एज अ एक्स्ट्रा चार्जेस गवर्नमेंट को पे करने होते हैं एंड द सेम एज अ वैट. तो इनका कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है निकालने का. जितने भी परसेंट सेल्स टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स हमारे बिल पर लगता है वी can find out the sales tax and value added tax which is added to the our bill. Okay, so I will explain these two topics, sales tax and value added tax, through the example. So the example is the price of a computer is 24,000. The sales tax is 12%. Find the total amount to pay. So here CP of a computer is rupees 24,000 and sales tax is 12%. So first we have to find out the tax कि जो टैक्स है वो 12% है, वो 24,000 का कितना होगा. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड 12% ऑफ 24,000. जब परसेंट और ऑफ एक साथ आते हैं वी हैव टू डू मल्टीप्लाई द बोथ नंबर्स एंड डिवाइड बाय 100. Okay, so it will be 12 into 240 and when we multiply 12 into 240 it will be 2,880. So it is the tax जो हमें इस 24,000 पे पे करना है. So the हमें जो पड़ेगा वो टोटल प्राइस ऑफ कंप्यूटर क्या होगा. टोटल प्राइस ऑफ कंप्यूटर will be 24,000 plus 2,880. Now add both the numbers. That means the cost price of the computer, total price of the computer will be 26,880. So in this question हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने सेल्स टैक्स को फाइंड आउट कर दिया 12% और उसको बिल में ऐड कर दिया है. Now we will discuss the example of VAT means value added tax. Like एक वॉशिंग मशीन है, ठीक है, and the cost price of washing machine is rupees, कुछ भी assume कर लेते हैं, like it is 12,500. Okay, it is the cost price and the VAT is 8%. So what will be the selling price of the machine? So the same process will be here. You have to find out the VAT amount. It will be 8% of 12,500 and 8% of, जब हम 12,500 का फाइंड आउट करेंगे it will be what, 20 से 20 कट हो गया and 125 into 8 and when we multiply the cost will be what, when we multiply 125 into 8 it will be 1,000. Okay, so the total means SP will be what, CP plus VAT. CP is 12,500 and plus 1,000. It is 13,500. So it will be the cost of the washing machine जो हमारी selling price होगी. So by this way you can solve the questions of the sales tax and value added tax. I am going to continue chapter number 8, comparing quantities of class 8, and we will start this video with simple interest and compound interest. So first I am taking here the simple interest. What is the simple interest? ये होता क्या है? सिंपल इंटरेस्ट होता है कि जब भी हम कुछ मनी किसी से बोरो करते हैं, ठीक है, दैट इज जो मनी हम बोरो करते हैं, इट इज कॉल्ड दैट पी, इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट. ओके, जो भी हम बोरो करते हैं एंड उस पर हम जो एक्स्ट्रा मनी पे करते हैं, दैट मीन्स कि जैसे मैंने किसी से 10,000 रुपीज बोरो किए और उसने बोला कि हमको आफ्टर 1 ईयर यू हैव टू रिटर्न टू मी, और कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स हमें कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट उस अमाउंट पर देना पड़ता है. तो
जो भी एक्स्ट्रा मनी होती है उस रेट से, दैट इज कॉल्ड द सिंपल इंटरेस्ट। ओके, सो टाइम पीरियड को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं हियर, टाइम पीरियड, एंड आर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो ये होता है ब्याज, ठीक है। तो जो भी जिस भी रेट पर उस इंटरेस्ट को पे करते हैं, that is called the simple interest, and the formula of simple interest is P, principal amount, into R into T upon 100. It is the formula to calculate the simple interest, and after that कि 1 year बाद, after 1 year कितना अमाउंट, टोटल अमाउंट हमें रिटर्न करना है। द फॉर्मूला ऑफ टोटल अमाउंट इज जो हमने लिया था, प्रिंसिपल अमाउंट मीन्स जो हमने बोरो किया था, and plus simple interest. These are two formulas to calculate. पहले हमें ऐसा ही निकालना होता है, then we can find out the total amount which we have to pay after some time of period. Let I am discuss here. Let किसी से 1000 रुपीज बोरो किए, इट इज रुपीज, ये हो गया आपका प्रिंसिपल अमाउंट। 1 ईयर के लिए लिया तो टाइम पीरियड विल बी 1 ईयर। रेट ऑफ परसेंट, लेट द रेट इज 5%। ओके, पीए का मतलब होता है पर एनम, मीन्स पर ईयर हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, 5%। सो आपको ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द एसआई एंड व्हाट इज द अमाउंट, कि 1 साल बाद हमें कितना तो टोटल अमाउंट उसको रिटर्न करना है और कितना एक्स्ट्रा मनी जो हमको 1000 रुपीज के साथ उसको रिटर्न करना है। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द एस आई। इट इज फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। कैलकुलेट इट, 10 इंटू 5 इंटू 1 इट इज 50। तो ये हो गया एक्स्ट्रा मनी ₹50 हमें एक्स्ट्रा मनी में देनी है, एंड टोटल अमाउंट व्हाट वी हैव टू रिटर्न टू हिम और हर, जिससे भी हमने ये अमाउंट बोरो किया हुआ है, इट इज P प्लस एस आई। P इज ₹1000 एंड प्लस 50, तो ये हो गया आपको ₹1050। ये अमाउंट हो गया टोटल विच वी हैव टू रिटर्न बैक आफ्टर 1 ईयर। Let's discuss about the formulas of simple interest. There are 4 वेरिएबल्स, मीन्स ये हमें 4 वैल्यूज होती हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट, P, R एंड T। तो ये जब भी हमें any 3 has given in the question, तो we can find out the fourth one. जैसे यहाँ से if P, R, T is given, you can find out the SI. Okay, if you have to find out P, तो फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई से, SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई से SI इंटू 100 हो गया, P के जो भी मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में नीचे आ गए। सेम एज R विल बी रेट ऑफ इंटरेस्ट, यदि आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, टाइम दिया है और सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन, तो यू कैन फाइंड आउट द R रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, तो यू कैन यूज द फॉर्मूला SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी, एंड द सेम एज फॉर द टाइम पीरियड आपको फाइंड आउट करना है, तो SI into 100 upon P into R. So by these formulas you can find any of the values, जो भी ये 4 वैल्यूज हैं SI, P, R, T, आप कोई सी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। Now discuss the topic compound interest. What is the compound interest? ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है कि जैसे हमने कोई भी अमाउंट लिया P, कुछ भी अमाउंट हमने बोरो किया, दैट इज P, सेम एज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R एंड टाइम पीरियड फॉर द टाइम पीरियड T, लेकिन उस अमाउंट को हम उसको रिटर्न नहीं कर पाए। ठीक है, लेट आफ्टर 1 ईयर हमसे बोला था, बट वी कांट रिटर्न टू बैक दैट अमाउंट। तो क्या होता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 1 ईयर होगा, दैट अमाउंट विल बी एडेड टू द प्रिंसिपल अमाउंट, मीन्स जो हमारा होता है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट इज दैट अमाउंट विच इज फॉर दैट प्रिंसिपल अमाउंट इज एडेड टू द सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है A, टोटल अमाउंट फाइंड आउट करने का, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर T। ओके, आई राइट हियर R स्मॉल r,
like that. A is equal to P 1 plus R upon 100 to the power T, the same as P is principal amount, R is rate of interest, T is टाइम पीरियड. T और A होता है टोटल अमाउंट, और यहाँ पर CI होता है टोटल अमाउंट में से if we minus that the principal amount we can find out the CI. So these two formulas are there by which you can find out the compound interest of any amount. कैसे होता है कि देखिए इसमें क्या होता है कि आप डायरेक्ट 2, 3, 4, 5 और सो ऑन मीन्स कितने भी ईयर्स का यू कैन फाइंड आउट डायरेक्ट अमाउंट. कि मान लिया आपसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द compound interest for the values. Let I am writing here P is 1000, R is 5% and T is 2 years, and you have to find out the compound interest of that question. So first you have to calculate A. Total amount P is 1000, 1 plus 5 upon 100 to the power 2. Okay, now you will cut this. इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं. 1000, नाउ यू हैव टू टेक द एलसीएम 20 प्लस 1 2. सो यू कैन राइट हियर 1000 इंटू 21 अपॉन 20 टू द पावर. नाउ यू कैन इजीली सॉल्व इट. 1000 इंटू 21 अपॉन 20, 21 अपॉन 20. सो 2 0 से 2 0 कट, 2 5 10. अब हमारा कुछ भी यहाँ पर कट नहीं होता है. सो वी कैन राइट हियर 21 इंटू 21, 441 इंटू 5, 5 5 4 ज़ा 20, 2 5 4 ज़ा 20 और 2 22. ओके, सो द वैल्यू इज दिस अपॉन 2. अमाउंट विल बी रुपीज 2 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 1 0 एंड 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 2 5 ज़ा 10. So that is, it is the total amount after 2 years we have to back. अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से we can find out the CI कि हमको जो 2 years में compound interest था वो कितना हुआ. So it is A minus P. A is what? It is 1000. This 0.5 minus 1000. It will be rupees 102.5. So by this way you can solve the formula, you can solve the questions of the compound interest. Now there are two cases. Case 1, when the interest is half yearly. अब इस term का what is the meaning of that term? Interest is half yearly. इंटरेस्ट इज हाफ ईयरली का मीन्स होता है कि आपको जो इंटरेस्ट देना है वो हर 6 महीने में देना है. मीन्स हाफ ईयरली means after 6 months you have to return the amount of interest, then next 6 month में आपको एक अमाउंट वापस करना है. तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या जो इंटरेस्ट अमाउंट है इट इज ऑफ द हाफ ईयरली. तो यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मूला विल रिमेन सेम, लेकिन हमारे को जो वैल्यूज हैं यहाँ पर P जो है P को हम P ही लेते हैं. ठीक है, R जो होता है ये हाफ हो जाता है, R अपॉन 2% से वी कैन कैलकुलेट. और जो टाइम पीरियड होता है उसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ पर हम टाइम को 2t लेते हैं. ठीक है, अब ये होता क्या है, देखो किस तरह से हो रहा है कि ये टाइम क्यों R हाफ क्यों हुआ. लेट हमने जो हमारा प्रीवियस फॉर्मूला था वहाँ पर था A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर T. यहाँ पर जो ये R था इट इज वॉट एवर बी द परसेंट पर एनम मीन्स पर ईयर. ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इंटरेस्ट इज हाफ ईयरली मीन्स हर 6 महीने के बाद यू हैव टू पे द इंटरेस्ट अमाउंट. ठीक है, तो हमने क्या किया, जो रेट होता है हमारा पर ईयरली वो 6 मंथ के लिए हाफ हो जाता है. ओके, और जो टाइम पीरियड है ऑब्वियसली यदि यहाँ पर 1 ईयर है तो उसके टाइम पीरियड कितने, 6 प्लस 6 मंथ, तो ये कितने टाइम पीरियड में कन्वर्ट हो गया, 2 में. इफ द टाइम इज 2 ईयर तो हमको 6 मंथ में मनी रिटर्न करनी है, इंटरेस्ट रिटर्न करना है. तो 6 मंथ का एक पेयर इस टाइप से, ये 4 हो गए. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2 कि आफ्टर 6 मंथ मीन्स आपको यहाँ पर सेमेस्टर्स काउंट करने होते हैं 6 मंथ्स के. ठीक है, सो दिस फॉर्मूला, और ये हमारे फॉर्मूले में किस तरह से कन्वर्ट होते हैं, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर T.
ओके, या तो आप यहीं पे r/2 लिख देंगे. फॉर्मूला विल यूज 1 प्लस r/2 इंटू 100 टू द पावर 2t. ओके, ये फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाता है. या तो ये है कि यू विल यूज दिस फॉर्मूला, और अदरवाइज यू हैव टू कैलकुलेट. यहीं पर अपना r फाइंड आउट कर लीजिए r/2 से. जैसे यू विल रीड द इंटरेस्ट इज हाफ ईयरली, आप रेट हाफ कर दीजिए और t को डबल कर दीजिए. यू कैन यूज द प्रीवियस फॉर्मूला. ओके, सो बाय दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ द इंटरेस्ट इज हाफ ईयरली. नाउ डिस्कस द केस सेकेंड. इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट इज क्वार्टरली. क्वार्टरली मीन्स होता है कि 12 मंथ का एक ईयर होता है, तो आफ्टर 3 मंथ्स वी हैव टू पे द इंटरेस्ट. उस केस में प्रिंसिपल अमाउंट विल बी सेम. R will be 1/4% पर एनम में कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड बाय 4 करके. ओके, एंड T विल बी 4 इंटू टी. मीन्स इफ द 1 ईयर, यदि टाइम हमारा 1 ईयर है तो 3 मंथ्स के क्या हो गया, 3 मंथ्स इंटू 4. तो दैट्स वाई वी मल्टीप्लाई बाय हियर 4. ओके, तो जो भी हमें गिवन होगा, लेट द एग्जाम्पल, वी विल डिस्कस द एग्जाम्पल. इफ P इज ₹1000, R is like 4% per annum, and time is 1 year. Okay, so how we will find out the amount? It is P 1 plus R/100 to the power T. Here P we will take 1000, 1 plus. Now R is 4. तो हम डिवाइड करके जब 4 करेंगे, it will be 1/100. एंड 1 ईयर का कितना हो जाएगा, 1 इंटू 4, दैट इज द पावर ऑफ 4. A इज इक्वल टू 1000. इट विल बी 101/100 टू द पावर 4. ओके, सो 1000 इंटू 101/100, इसको हम कितना लिख लेंगे, 4 टाइम्स. एंड बाय सॉल्विंग दिस वी कैन फाइंड आउट द टोटल अमाउंट, एंड देन कंपाउंड इंटरेस्ट A minus P करके वी कैन फाइंड आउट द compound interest. If the concept of this video are clear to you, so like this video, share it and subscribe and press the bell icon. Thank you.